डेकेड फिल्म में मैं जुड़ा होता हूँ आउटडोर पार्टनर के तौर पे, और जितने भी बड़े बड़े होर्डिंग्स हैं ये फिल्म के वो मैं लगाने वाला हूँ, और जितने भी सुपरस्टार्स हैं उनकी लाइफ की पहली पिक्चर भी मैंने की है, और जितने भी अवार्ड्स इंडिया में होते हैं सीरियल और सब में ब्राइट एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जुड़ा हुआ है। और ब्राइट इतना लकी है कि सबकी मोस्टली 90% सब सुपरस्टार की पहली फिल्म ब्राइट ने की है। तो इस फिल्म का क्या खास बात थी जो आपने प्रमोट करने के लिए डिसाइड किया? मैडम और इनके जो अंकल है वो मेरे दोस्त हैं, और उन्होंने बोला कि स्ट्रगल और नए नए स्टार्स को आपको प्रमोट करना चाहिए। बड़ी बड़ी फिल्म और बड़े स्टार्स की फिल्म तो सब करते हैं, लेकिन यंगस्टर को और छोटे लोग और छोटी फिल्म में भी अगर साथ नहीं दिया तो ये बड़ी कैसे बनेंगे। तो जितने भी सुपरस्टार है पहले छोटे थे फिर बड़े बने, तो ऐसे हर इंसान को, मेरे वहाँ आने वाले हर को मैं मदद करता हूँ, तो जितना हो सके उतना उनको कोशिश करता हूँ कि उनकी फिल्म भी आगे बढ़े। इस फिल्म को किस तरह की ब्लेसिंग देना चाहेंगे आप अपनी तरफ से? एग्जिबिटर्स व्यू, क्लाइंट्स व्यू, बिजनेस व्यू और स्टार्स व्यू, और जितने भी एरियाज है मेन प्राइम एरिया उनमें उनका जो एक्सपोजर करेंगे, और उन पर जो भी उनका पब्लिसिटी वे में बेस्ट मीडिया रहेगा उसके बाद सैटरडे को प्लानिंग करेंगे। Thank you. Well, I'm your host Akriti Anand, and I extend a warm welcome to everyone present over here at the music launch of the upcoming Hindi feature film Flat 211, directed and produced by Mr. Sunil Sanjan, releasing on 2nd June 2017. Since the birth of Bollywood, music has always been an important part of our movies. Good music and popular songs are an important part in the success of our films. We have heard a lot of great music and wonderful music in the past. And today, yet again, we are celebrating music here tonight. At the music launch of Flat 211, the upcoming Hindi feature film directed and produced by Mr. Sunil Sanjan, to be released on 2nd June this year. Flat 211, besides a strong storyline, the film has quite a unique and catchy music as well as lyrics, which has been appreciated by some of the best singers from the film industry. The lyrics are penned down by the writer of recent famous poem Tu Chal, recited by the legend Mr. Amitabh Bachchan himself, and the song Kari Kari from the film Pink, Mr. Tanveer Ghazi. Each song has its own unique style and mood, which is totally different from the other songs. The songs in the movie are sung by some of the very popular singers like Mika Singh, Harshdeep Kaur, Mohammad Irfan, Ash King, Divya Kumar, Tarannum Malik, and many more. Hence, we believe Flat 211 has the potential of becoming a big Bollywood music blockbuster. Well, now, without taking further your time, can I please call upon the team of Flat 211, without whose support, without whose hard work, this event, this movie wouldn't have been possible. So let me start by calling the captain of the ship, the director and producer, Mr. Sunil Sanjan, on stage, please. As a model for a short span of time and moved to Dubai in 2011 for his business. While he was in Dubai, he learned filmmaking for his passion as a part-time course, and today he is back in India, has set up his own production house, Aja Global Entertainment, and we are all here tonight to witness the music launch of his first upcoming Hindi feature film, Flat 211. Now I would like to call upon the co-producer of the movie, Mr. Sameer Kumar. He has a good body of work in television and modeling industry. He is now venturing into filmmaking following his passion. Now I would like to call upon the music director of the film, Mr. Prakash Prabhakar. Can we have you on stage, please? A renowned music composer and singer with a good body of work in Hindi as well as Marathi films, Mr. Prakash Prabhakar. I would also like to call upon the lyricist, Mr. Tanveer Ghazi, on stage, please. Oh, I'm so sorry, he's on the way. He'll be with us pretty soon. I would also like to call upon the actors of the movie. They are all renowned faces and have done good work in television industry and theatre. Can we please have Mr. Jayesh Raj on stage, Miss Sonal Singh, Miss Samanika Srivastava, and Mr. Ryan Kohli on stage, please.
Please, can we hear it for all the actors? Well, thank you. Also, I would like to call upon the singers for whom we are celebrating today. The music launch is celebrated. Any movie is not a complete movie without the singers, and music, as we all know, is the soul of most of our Bollywood films. So I would like to call upon the singers on stage, please. Mr. Muhammad Irfan. Mr. Muhammad Irfan, he's also on. We are going to launch the music of this movie. Wow, the cover looks so beautiful, isn't it? Can we please hear it at the music launch of Flat 211? Guys, come on, we can do better. We can have a louder applaud. We all can do better. That's right. ब्लॉग चेक कैमरा थोड़ा नीचे लेगा एक मिनट Come close, sir. Yeah, lovely. Yeah, look camera, sir. steady अलग here here Yes, look camera. Taking further more time, we actually should launch and uncover the mystery from the title track of Flat 211. Can we hear the music, please? The title song of the movie, Flat 211. Well, thank you so much, people. Isn't it a very unique and a different song? Well, I'm sure you all have liked the song, and it is very evident in the kind of appreciation that you all are showing. My friends, such an intriguing poster of the movie. As we have just launched the CDs, we all saw the poster. Such an intriguing poster. Actually, it creates a lot of mystery, right? Aren't you all curious to find out more about Flat 211? Are you curious to find out more about Flat 211? Yeah. What is this movie about? Are you ready to tackle a murder mystery that really teases the brain? So my friends, we also have a surprise for all of you right here, right now at this place, because we are also going to launch the trailer of the movie. Yes, my friends, that is a surprise that we have for all of you. We are going to launch the trailer of Flat 211 right here along with the music launch. So I would like to request to please play the trailer on the screen, please. नजर आते हैं यहाँ आने की खास वजह और कॉमेडी और एक बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेलर देखा हमने अभी क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहली बात तो आप सबका धन्यवाद, आप वक्त निकाल कर आए हैं मेरी इस फिल्म के लिए। आप सोचोगे मेरी इस फिल्म मतलब सुनील की फिल्म के लिए, मेरे नाम भी तो सुनील है। और देखिए स्पीकर परेशान कर रहे हैं, देखिए फिर सोनू निगम कुछ बोलता है तो फिर तकलीफ में आते हैं आप लोग। गुड, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ये साउंड पहले हो जाता तो फिर कंट्रोवर्सी नहीं होती। बहुत अच्छा लगा। अब कौन? अच्छा, वो नहीं आएगा, विजय माल्या को बेल मिल गई। वैसे मीडिया जनरली कब आएगा? वो क्या आएगा? मीडिया में थोड़ी आएगा वो। तो आप सबको ये फिल्म आपने सबने देखी, मैंने भी वहां पर देखा, हमारे भाई राज भाई वहां पर बैठे थे, एहसान जी, हम सबने बहुत एंजॉय किया। जोरदार तालियां इस पूरे टीम के लिए, टीम वर्क के लिए। और वैसे भी बहुत दिनों से ये सस्पेंस और हॉरर फिल्म आई नहीं है, तो लोगों को इस टाइप के जॉनर की तलाश है। और ये फिल्म डेफिनेटली भगवान करे सुपर हिट हो, इसके प्रोड्यूसर के बहुत सारे पैसे वापस आए और फिल्म बने, और 3-4 फिल्में और बने, एक आध कॉमेडी भी बनाइए, उसमें फिर हम लोग करेंगे। अगर आप सीरियस भी बनाएंगे तो भी हम लोग कॉमेडी करेंगे, तो इसमें आप लोग बुलाइए। और
उतने अच्छे नहीं दिखते हैं, डरावनी भी बनाएंगे तो हमारे चेहरे डरा सकते हैं। नहीं, अगर आपने सीरियस फिल्म बनाई तो भी हम डरावने लगेंगे उसमें, तो वो भी हॉरर ही फिल्म कहलाएंगे। 2 जून को रिलीज हो रही है। आपको पता है 2 जून की रोटी के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं। हम लोग यूपी के लोग जितने लोग इस बात को समझ रहे होंगे कि कहाँ जा रहे भैया, 2 जून की रोटी के लिए। तो सोनल भी आ गई है, देखिए बहुत सही समय पे आई, हम पहले आ गए थे। तो ये हमारी मेन हीरोइन है। तो बहुत सारी बातें हैं, दिल से दुआ निकल रही है इस फिल्म के लिए। भगवान करे, ईश्वर करे 2 जून को जैसी बरसात होने वाली है, पैसों की बरसात हो, बहुत सारी पैसों की बरसात हो, और पैसों के तालाब में आप लोग स्विमिंग करें, ये मेरी शुभकामनाएं। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट। आप जियो हजारों साल, तहे दिल से दुआ दे रहा है सुनील पाल। थैंक यू वेरी मच। यहाँ आने का एक रीजन था, जो इतनी प्यारी कलम और आवाज सुन रहे हैं आप, ये कलम है तनवीर गाजी की। हम दोनों ने एक साथ सफर शुरू किया था, महाराष्ट्र के छोटे से जिले से, नागपुर से शुरुआत हुई थी। तनवीर गाजी जिन्होंने गीत लिखा है सर, उसका सिर्फ एक शेर सुनाता हूँ, उसका अंदाज लगेगा कि कितना बड़ा शायर है। जी तनवीर भाई, जोरदार ताली बजा दें। यस यस। रात की डायन है जो आंख खोलकर सोती है, और एक दिन की देवी है जो खून के धब्बे धोती है। बहुत गाने की धुन के लिए बहुत अच्छी बधाई, ये जरूर गूंजेगी आपकी धुन। ये तनवीर गाजी हैं, इनका एक शेर, इनकी शख्सियत का अंदाज लगाइए। वो कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं, वो कैसे लोग हैं जो बम बनाते हैं, अरे उनसे बेहतर तो कीड़े हैं जो रेशम बनाते हैं। ये ऐसी कलम के धनी है, इनकी मोहब्बत है। चला आया सुनील जी, बहुत प्यारा डायरेक्शन है आपका, और मैं समझता हूँ फिल्म जब तक चलेगी कोई सीट छोड़ेगा नहीं। इंटरवल में किसी का कोई सामान बिकने वाला नहीं है, क्योंकि बाहर निकलेंगे जब खाएंगे, वैसे कोई नहीं खाएगा। बस दिल से हम तो यही दुआ करते हैं कि आपकी फिल्म को सब दें प्यार, तन मन और धन, और हिट हो जाए आपकी फ्लैट 211। थैंक यू। हम बात करते हैं और उसी देश में, क्योंकि म्यूजिक लॉन्च है, मैं सिंगर का जिक्र, जैसे आपने सोनू जी का जिक्र किया, एक अलग तरह की वो अपनी बात रखते हैं कि उन्हें आजान से प्रॉब्लम है। एहसान आपके साथ खड़े हुए हैं, आप सुनील पान है, वो एहसान कुरैशी है। इस मुद्दे पे आप दोनों की क्या राय है, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं ज्यादा सीरियस जवाब नहीं दूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि सोनू जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, जबरदस्त फैन हूँ। लेकिन आज ही मैंने एक आइटम सोचा उस चीज पर कि सोनू जी ये कंट्रोवर्सी करके सो गए, तो रात के सपने में उनके स्पीकर आया, लाउड स्पीकर आया, और रतन नूरा के अंदाज में आके कहता है, कैसे सिंगर हो सोनू, कैसे गायक हो, पहला गायक देखा दुनिया का जो स्पीकर से परेशान है। अब तुम करोगे क्या? रिकॉर्डिंग में जाओगे वहां भी स्पीकर, जहां जाओगे प्रोग्राम में जाओगे वहां भी स्पीकर। बस एक चीज हो सकती है, तुम राजनीति ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वहां भी लोकसभा में जाओगे तो वहां भी स्पीकर। स्पीकर को तुम बर्दाश्त नहीं करोगे, स्पीकर तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेगा। एक नौकरी तुमको मिल सकती है पुलिस की, राजपाली की। जब रात में ये जगराता चलता है, भजन चलता है, कव्वाली चलती है, तो 10 बजे ठीक स्पीकर बंद करने के लिए तुम्हें पुलिस की जीप की नौकरी मिल सकती है, क्योंकि तुम्हारी जीप में वो ताकत है कि स्पीकर बंद कर सको। तो मैं तो कहता हूं कि भैया कोई कुछ भी कहे, शब्दों पे ध्यान मत दो, भावनाओं को समझो। मैं भाई के लिए कहना चाहूंगा कि ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लो, यूपी में करोगे तो पिटना समझ लो। अजान की मीनिंग आप सब समझते हैं, वो इबादत नहीं है, और बस एक संकेत है, अलार्म कि नमाज का टाइम हो रहा है, आ जाओ, सब काम छोड़। इसकी मीनिंग ही वही है, सफलता की तरफ आओ, कामयाबी की तरफ आओ। सिर्फ इतनी सी आवाज मौलवी पहुंचाते हैं, और फिर इतने धीरे नमाज पढ़ते हैं कि बाजू वाले को नहीं मालूम कि मैं क्या मांग रहा हूँ। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। मैं तो बचपन से उन लोगों के साथ रहा हूँ जिन्होंने शेर कहा, सभी धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। सभी धर्मों को समान होने दो, मेरे देश को महान होने दो। अब मस्जिद में पढ़ी जाने दो गीता, और मंदिर में अजान होने दो। थैंक यू वेरी मच। सर सबसे पहले तो स्टार कास्ट की बात करता हूँ। मैं जैसे
इंट्रोडक्शन दिया, मैंने कोई दोस्त था, मैं आईटी बैकग्राउंड से हूँ। तो ये फिल्म मैं शायद आपको पता नहीं है, मैंने जॉब करते हुए बनाई है। आई वॉज वर्किंग, एक साइड काम कर रहा था, दूसरी साइड फिल्म बन रही थी। तो मैं इतने बड़े शायद जो बड़े स्टार्स हैं, जो बड़े एक्टर्स हैं, उनकी डेट्स शायद मैं ना मैच कर पाता, पहली बात, टू बी ऑनेस्ट। सेकेंडली ऑफ कोर्स अगर आप बड़े किसी स्टार को जाते तो बजट भी बहुत जाते हैं। तो बीइंग एन आईटी प्रोफेशनल, अगर मैं अपने बजट पे लेके फिल्म चल रहा हूँ तो मुझे वो भी एक ध्यान रखना था सबसे पहले, जो रियलिटी है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि नहीं मुझे ये चाहिए। तो लास्ट ये था कि जो एक्टर्स थे ये सब इतने अच्छे एक्टर्स है कि जिनको मैंने बोला कि आप बैठ जाओ तो बैठ गए, ऑनेस्टली खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए। दैट्स व्हाट आई नीडेड, ये अपने हिसाब से मेरे हिसाब से चल सके। तो इन्होंने वो खूबसूरती से वो सारे काम किए जो मुझे चाहिए थे। फ्लेक्सिबिलिटी बोल सकते हैं, और मेरा जो स्केड्यूल था उसके साथ उन्होंने मैच किया। Okay, Sonal, do you think the good start in Bollywood? Yeah, it's a very good startup, you know, and working with these people is an amazing experience for me. Okay, the two people over here, you know, you are amazing in the video, you know. Tell us how's your experience, and the song is really look very impressive. You know, the way it is choreographed, the way it is, you know, you have done it. Yeah, thank you so much. First of all, the look. पहली बात मैं सबसे ज़्यादा इंस्पायर था लुक से जो हमें दिया गया. Yeah, exactly. The look is like kind of very gothic looks. She's Diane of Queens. Yeah. and I'm like, I want to beat her. I want to beat bad things of the song, like the negativity. So she's like negativity in the song, and I'm like the positive guy. So yeah, experience is mind blowing because जो song था वो हमारे looks के ऊपर proper था, और like मजा आया वो करके कि यार wow, this is you know what ईशान and प्रीति is. Exactly. कुछ नया करने को मिलता है, वो मजा ही आता है. Yes, what you say about your experience? Well, my experience was very nice. मतलब सुनील जो है, he has got a vision. उन्हें पता है कि उन्हें क्या चाहिए, और वो एक्टर से वही निकाल, जैसे उन्होंने कहा, अगर उनको बोलते थे खड़े हो जाओ, बहुत बार झगड़ा होता था, हमारा आर्ग्यूमेंट होती थी, बट फाइनली जब मैं उनकी बात से सहमत होता था, वो बहुत प्यार से समझाते थे, और उनका जो विजन है दैट इज इनक्रेडिबल। ये तो बस शुरुआत है, आपने एक गाना देखा है, आई प्रॉमिस यू आप बाकी के गाने भी देखेंगे, आपको सब पसंद आएंगे। The music director, you know, it's really impressive. Might be I'm repeating too many times, but it's really impressive. Tell us, you know, what was there in your mind and what was the vector brief while composing this title song of the film? एक्चुअली सबसे पहले मैं थैंक करना चाहता हूँ सुनील भाई का, क्योंकि ये ऐसा बंदा है कि जिसके साथ में हर म्यूजिक डायरेक्टर काम करना चाहेगा, क्योंकि इन्होंने मतलब 100% फ्रीडम तनवीर भाई को और मेरे को एकदम फ्री छोड़ दिया कि आपको जो लगता है जो आप बेस्ट कर सकते हो आप वो कीजिए। तो उसी का आउटपुट अभी आप देख रहे हो स्क्रीन पे, तो आप सबको, मुझे उम्मीद है सबको अच्छा लगा शायद। Okay, so Sunil, you know, film making is also a very serious business. You know? In the current scenario, when giants like Hrithik Roshan and Shahrukh are fighting for the screens, what will be your strategy to release the film in Mumbai, in India? Sir, and how many screens will be getting? आपने खुद ही शायद 2-3 बार जैसे बोला तारीफ कर डाली है गाने की, तो अभी सब आपने इसमें एक ही गाना देखा है। अगर आप पूरे गाने देखेंगे, मेरी फिल्म में 7 गाने हैं, 5 ओरिजिनल, 2 अनप्लग्ड है। अगर आप देखेंगे सर, पब्लिक खुद आएगी। तो मुझे भरोसा है कंटेंट पे और इसके म्यूजिक पे। बेशक कास्ट हमारी नई नहीं है, काफ़ी टीवी एक्टर है, बहुत अच्छे हैं, थिएटर एक्टर्स हैं, टीवी एक्टर्स हैं सारे, ऐसा नहीं उनके उतने बड़े नाम नहीं है, बट दे आर वेरी गुड एक्टर्स। तो सबसे पहले तो थिएटर तक ऑडियंस को ले जाने के लिए हमारे पास म्यूजिक है, और जो ट्रेलर आपने देखा, शायद आपने खुद ही तारीफ करी अभी, तो यही मुझे इसी पे भरोसा है कि आई विल पुल द देख रहा हूँ ये वैसी की वैसी ही है, और खूबसूरत और खूबसूरत और खूबसूरत होती जा रही है, नई नई हीरोइन को और टेंशन देती जा रही है। मैंने इसे चुपचाप पूछा कि राज क्या है, तो अपने गाने में कहती है, कभी नीम नीम कभी शहद शहद मैंने पिया। तो आप भी नीम और शहद पीजिए ताकि आप युवा दिखो। तो मधुश्री जी यहाँ पर आई तो 2 लाइनें तो बनती, और इसी गाने की मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जोरदार तालियां मधुश्री जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ सबको। प्रकाश जी और तनवीर मेरे बहुत अच्छा दोस्त है, उन्होंने मुझे इनवाइट किया कि आपको आना है। तनवीर बहुत अच्छा लिखते हैं, मेरे लिए भी लिखा है, और प्रकाश जी ने बहुत अच्छा म्यूजिक दिया, और सुनील जी मेरे बहुत अच्छा मित्र है। तो जो मुझे पता चला सुनील जी भी आएंगे, तो मैंने कहा ज़रूर मैं आऊँगी और सबको हौसला देने के लिए आऊँगी। और एहसान जी के बहुत बड़ी फैन हूँ, और सब लोग को बहुत बहुत मुबारकबादें। बहुत बहुत आपके फिल्म सक्सेस हो जाए, बहुत अच्छी बात है। आप लोग ने
इतने अच्छे फिल्म मेहनत किया, इतना अच्छे फिल्म बनाए, बहुत कामयाबी मिले। कभी नीम नीम तो आप बहुत सुने होंगे आपने, मैंने पिया कह दिया। तो मैं बाहुबली 2 में मेरे बहुत अच्छा गाना आ रहा है, आप लोग सुनेंगे। एक कृष्ण भजन है, इसका एक दो लाइन जरूर सुनाऊंगी। मोरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मोरे बंसी बजैया नंद लाला कन्हैया, मोहे मोहे ऐसे नहीं छेड़ो सावरे, सुनो सुनो मोहे नहीं खेलो बावरे, जाके यशोदा से कह दूंगी रे, कान्हा सो जा जरा, ओ कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा, कान्हा सो जा जरा। मैंने पिया मैंने पिया मैंने पिया, कभी नीम नीम कभी शहद शहद, कभी नरम नरम कभी सख्त सख्त, मोरा पिया मोरा पिया मोरा पिया, नजरों के तीर में बसा है प्यार, जब भी चला है वो दिल के पार, लज्जा से मरे रे जिया पिया, लज्जा से मरे रे जिया पिया रे, लज्जा से मरे रे जिया। कि बहुत अच्छी फिल्म बनी है, स्पेशली हॉरर जो जहाँ सस्पेंस है। अभी इस पर बहुत दिनों से कोई फिल्म आई नहीं है। खुद अब्बास मस्तान बनाते थे, लेकिन उन्होंने भी सस्पेंस बनाना बंद कर दिया और सस्पेंस क्रिएट करना शुरू कर दिया। 2-4 फिल्मों में उन्होंने ऐसा सस्पेंस दिया कि मैं आज तक समझ नहीं पाया कि क्या इंसान को देखो मशीन को देखो। लेकिन ये हमारे भाई है, उन्होंने 211 बनाया, फ्लैट 211 बनाया। उसका ट्रेलर देख के मैं भी फ्लैट हो गया और मैं समझता हूँ कि 2 जून को जब ये फिल्म आएगी तो इस फिल्म से दर्शक दोबारा और इस तरह से फिर से जुड़ जाएंगे और ये फिल्म सुपरहिट होगी, मुझे ऐसा पूरा विश्वास है। और ये फिल्म बाकी पूरे टीम को 2 जून की रोटी दिलवाएगी, क्योंकि 2 जून को ये 2 जून को ये फिल्म रिलीज हो रही है। बहुत ही अच्छा मंजर है, बहुत अच्छे गाने, बहुत अच्छे म्यूजिक, बहुत अच्छा। और सारे सेक्शन मेरे बहुत ही फेवरेट है, क्योंकि मैं म्यूजिक भी बहुत पसंद करता हूँ। सोनू निगम की कसम मुझे बहुत अच्छा लगा और आई लाइक सोनू निगम जी, थैंक यू वेरी मच। होगा हाँ बोल दो भाई मीडिया के सामने। सर डेफिनेटली उसका बल 211 233 जैसा कुछ कॉमेडी को टाइप का। तो मैं सब देखने वालों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आपको देखना है प्यार मोहब्बत रहस्य और गन, तो सब देखने जाना प्यार से, फ्लैट 211। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बहुत शुभकामनाएं। नए लोग जब सामने आते हैं बहुत अच्छा लगता है और ये आपकी मेहनत रंग लाएगी। पूरी स्टार कास्ट अच्छी लगी, गाने बहुत बढ़िया हैं, बहुत दिनों के बाद इतने अच्छे बोल मिले। एक ऐसी डायन जो रात में आंखें खोलकर सोती है और एक ऐसी देवी घर घर की स्टोरी डर चुके हैं कि हॉरर टाइप का चेहरा है। तो मैं तो उनसे कह रहा हूँ कि अगली बार मुझे मेन लीड लीजिए, क्योंकि भूतों की फिल्म में मेन लीड तो भूत ही होता है, तो मुझे आप ले लीजिए। और ये चेहरा देखकर लोगों को या तो हंसी आ सकती तो डर आ सकती, तो दोनों जॉनर मेरे लिए मैं समझता हूँ कि स्वागत ही है। आप प्लीज मुझे जल्दी से मौका दीजिए। सुनील साहब, इसके अलावा अगर शुभकामनाएं देगा कैसे देगा? हमारा नाम है रतन नोरा और हमने प्रोमो देखा पूरा के पूरा। अब आपको प्रॉफिट होगा पूरा और नहीं कुछ पैसा बचेगा अधूरा। आप आपका कोई रोक नहीं पाएगा रास्ता, क्योंकि इसमें सूर भी है और है सूरा नशा है। अच्छा, इसके अलावा सोनू निगम जी की कंट्रोवर्सी के बारे में, अगर अजान के बारे में अगर हम बात करें तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? आपकी क्या ओपिनियन है इस बात पर? बहुत सारी कंट्रोवर्सी चल रही है। अब मुझे पता नहीं एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा है। हालांकि सोनू निगम जी के साथ में मेरे पारिवारिक संबंध है, पूरा परिवार निगम मुझे जानता है और मैं समझता हूँ कि ऐसा तो वो कभी किसी, क्योंकि वो बहुत प्यारे इंसान है, सब रफ़ी साहब की बहुत इज्जत करते हैं। सिंगर्स की गज़ल सिंगर उनके उस्ताद खुद, उनके नाम क्या है उस्ताद है उनके, सुल्तान खान साहब के शिष्य है वो, उनके पैर छूते हैं।
तो वो उन्होंने शायद पर्टिकुलर एक ऐसी अजान के लिए ऐसा किसी ने नहीं कहा होगा, कुछ ऐसा कुछ मुंह से निकल गया होगा। तो मेरा तो स्लोगन ही है, भक्त जनों शब्दों में क्या रखा है, भावनाओं को समझो। तो सोनू निगम साहब, अगर आपके मुंह से कुछ गलती से निकल भी गया होगा तो वी लव यू। आप तो बहुत अच्छे सिंगर है, स्पीकर और लाउड स्पीकर से तो आप नाराज बिल्कुल ही मत होइए। जितना प्यार करेंगे आप स्पीकर से, लाउड स्पीकर से, उतने गाने आपकी दुनिया भर में मशहूर होंगे और उतने आप रोशन होंगे। आपको राजनीति में भी जाना हो तो वहाँ भी स्पीकर ही मिलेगा आपको। तो हर तरह से आपको तो ये है कि मेरे तो 2 फेवरेट है, सोनू निगम और अरिजीत। प्लीज बयानबाजी में मत बनिए आप अभिजीत। थैंक यू। जैसा कि आपको पता है वो भी एक सस्पेंस मामला है, तो वो भी एक सस्पेंस मामला बना हुआ है, लेकिन जल्दी ही पर्दा खुलने वाला है, देखते हैं क्या होता है। बट आई होप कि जैसा आप चाहती हैं, जैसा सब लोग चाहते हैं, परमात्मा सबका भला करे। काफ़ी सस्पेंस फिल्म है, तो मैं आपको अपने किरदार के बारे में बताऊंगा। आपको सच्ची में फिल्म देखने में इतना मज़ा नहीं आएगा, आप चाहेंगे कि आप सस्पेंस में रहें। इसलिए मैं अगर फिलहाल कुछ भी बताऊंगा तो जाती होगी आपके साथ, आपको फिल्म देखने में मज़ा नहीं आएगा। इसलिए मैं फिलहाल कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आप सस्पेंस में रहिए, आपको मज़ा आएगा। मतलब नए स्टार का ट्रेलर से तो लगता है कि अच्छी फिल्म है और अच्छी ही रहे, ट्रेलर से वैसा लगा है जी। तो फिल्म के अंदर का क्या स्टोरी थोड़ा सा अगर आप दिखा दें तो स्टोरी आप दिखा दें, जयेश दिखा दें आप। फिल्म की जो स्टोरी है, मैं आपको एक सस्पेंस आपको बताता हूँ, आप किसी को बताना मत। ये फिल्म फ्लाइट 211 के ऊपर है, आप किसी को बताना मत। ये मैंने आपको अंदर की बात बता दी है, फ्लाइट 211 है ना, वो फ्लाइट के ऊपर है। म्यूजिक फ्लाइट से बड़े शायर ने लिखा है इसके अंदर, तो म्यूजिक इज टू म्यूजिक अमेजिंग, बेस्ट म्यूजिक के लिए सर मैं कुछ नहीं कहूँगा, आप मेरी बात सुनिए मत, आप खुद सुनिए म्यूजिक, आप खुद जज कीजिए। मेरी बात मत सुनिए, आप खुद सुनिए, जो है आप खुद जज कीजिए। रोमांटिक है, वो एक्सट्रीम रोमांटिक है, एकदम बहुत सही। जो मीका सर ने गाया है सॉन्ग, ओ गॉड, ये पूरे टाइम से सेट पे नाचती रहती थी, गाने सुनते I used to sing, yes, I used to dance, I used to sing just like that only. आपका गाना की सबसे बड़ी मेगा फिल्म आ रही है फ्यूचर में, ये मैं आपको बता नहीं सकती मैं कितना ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं इस वक्त जी बांग्ला सारेगामापा का जजिंग कर रही हूँ, कुमार शानू, शांतनु दा, फिर जीत दा, सबके साथ। तो इसका 15 डेज तो मुझे कोलकाता में रहना पड़ता था। सडनली मुझे फ़ोन आया कि आपको आना है, तो मैंने कहा देखिए मैं शूटिंग करूँ, नहीं आ पाऊँगी। लेकिन जब मुझे बताया गया बाहुबली के लिए, तो मैंने कहा बाहुबली तो फिल्म रिलीजिंग में है, मतलब नई गाना बाकी है, बहुत ट्राई किया गया बहुत सिंगर से, लेकिन आपको ही गाना है। तो मैंने उस जी का जो एक शेड्यूल, मैंने मार्च का शेड्यूल मैंने कैंसिल करके गई वहाँ पर, और जब गाना सुना हैरान हो गए। इतना अच्छा गाना जैसे कि मेरे लिए बनाया गया है। एक कृष्ण भजन है, बहुत सुंदर गाना है, और इसमें मॉडर्न है, पेपी है, क्लासिकल बेस भी है, मेलोडी है, और एम क्रीम जो है मेलोडी के लिए मास्टर है, बहुत ही बढ़िया। और इसमें हीरोइन के ऊपर भी चॉइस किया गया है, बहुत सुंदर। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। ये भी कहना चाहूँगा कि जैसा जानते हैं सोनू निगम जी ने ट्वीट किया, बहुत गैर जिम्मेदाराना ट्वीट था, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सच बताऊं, अभी मैं बांधवगढ़ से आई हूँ, इस वक्त आके मैं डायरेक्ट, मतलब तन्वी ने मुझे बुलाया तो मैं आ गई, जस्ट चेंज करके आ गई। मैंने ठीक से सुना नहीं, मैंने ऐसा कुछ सुना है, लेकिन मैं पहले सोनू से बात करना चाहूँगी जी क्या बताया, उसके बारे में बाद ही कुछ कमेंट करूँगी, क्योंकि मैं तो हैरान हो गई सुन के जो मुझे सुनाई पड़ा। लेकिन आई थिंक आई शुड टॉक टू सोनू फर्स्ट, देन आई शुड कमेंट। और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके बाहुबली 2 के अलावा? बाहुबली 2 सबसे बड़ी प्रोजेक्ट है। उसके बाद मैं एक कबाड़ी बोल के एक फिल्म आ रही है, जो ओमपुरी जी उनके जो लास्ट फिल्म थी, उसमें बहुत रोमांटिक एक गाना है शान के साथ। उसके बाद लव यू फैमिली है, कुछ फिल्म आ रहे हैं, और आजकल तो आपको मालूम ही है हम लोग सब सिर्फ फिल्म में गाना नहीं, आप म्यूजिकल रियलिटी शो में भाग लेते हैं, शोज करते हैं, इधर उधर बहुत कुछ एक्टिविटीज़ में, मतलब एवरीथिंग एंड म्यूजिक में बिजी है, बहुत बिजी। जी हाँ, आज हम म्यूज़िक लॉन्च कर रहे थे ऑफ द मूवी फ्लैट 211। बहुत ही अच्छा इवेंट रहा, एंड मूवी का ट्रेलर बहुत अच्छा है, और एंकरिंग करके मुझे बहुत मज़ा आया। बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ आए थे, और आप ज़रूर मूवी देखने चाहिए, आपको मज़ा आएगा। एक थ्रिलर मूवी है और बहुत टाइम बाद आ रही है, तो आई थिंक आपको ये मूवी देख के बहुत रोमांच महसूस होगा, क्योंकि ट्रेलर देखने के बाद तो मुझे बहुत ज़्यादा रोमांच महसूस हो रहा है। और अगर ये मिस्ट्री मैंने नहीं देखी तो मुझे पता नहीं चलेगा कि मर्डर किया किसने है। सो आई रियली हैव टू सी इट। कोशिश करते हैं, बड़े बड़े लोग कलाकार काम करते हैं, आप कितनी पैशनेट हैं एक्टिंग के मामले में?
जी बहुत ही पैशनेट हूँ अबाउट माय वर्क और पिछले 5 साल से बॉम्बे में काम कर रही हूँ और काम आता रहता है, दिखता रहता है आप सबको, तो आप सबको पता ही चल जाता है कि हाउ पैशनेट वी आर एंड कितना अच्छे से हम लोग काम करते हैं। और आपके पर्सोना क्या होस्टिंग के अलावा और क्या आपका पैशन है और क्या करना चाहती हैं आप? जी होस्टिंग के साथ साथ आई एम अ फैशन मॉडल, बहुत सारे फैशन वीक्स में वर्क किया है। इसके साथ ही आप किसी भी डिज़ाइनर का नाम ले लीजिए, बी इट अ नेशनल डिज़ाइनर, इंटरनेशनल डिज़ाइनर, लोकल डिज़ाइनर, स्टूडेंट डिज़ाइनर। आई वर्क विद ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द डिज़ाइनर्स इन ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बिगेस्ट फैशन वीक्स इन इंडिया एंड इसके साथ ही आई वॉज द विनर ऑफ टॉप मॉडल ऑफ द वर्ल्ड 2011। तो उसके बाद ऑटोमेटिकली बहुत सारा मॉडलिंग असाइनमेंट किया, बहुत सारे बड़े बड़े प्रिंट शूट्स किए हैं, एक मूवी भी की है, उसका नाम था लव फिर कभी, जिसमें मेरा रोल था एंड आई वाज डूइंग द प्रमोशनल सॉन्ग ऑफ दैट मूवी। इसके अलावा सीरियल में भी अपीयरेंस किया है, तो आपने मुझे बहुत सी जगह देखा होगा। जी आप क्या कहना चाहेंगे कि सेकुलर बेस है बॉलीवुड, तो इस तरह का जो मूवी बनता है जैसे रिलीजन बेस्ड, कितना सही है कितना गलत? जी आई थिंक सोनू निगम जी अपना खुद का एक ओपिनियन व्यक्त कर रहे थे जिसको बहुत बड़ा कंट्रोवर्सी बना दिया गया है, क्योंकि अगर मैं भी बोलूँ तो अगर कोई लाइट स्लीपर होता है, कोई अगर बहुत हल्की किसी की नींद होती है, अगर उसको आप सुबह सुबह या किसी भी टाइम अगर इतनी ज़ोर ज़ोर से म्यूज़िक बजाएंगे या फिर आई एम सॉरी आई शुड नॉट से म्यूज़िक बट किसी भी रिलीजियस प्लेस से अगर इतनी ज़्यादा आवाज़ आती है तो ऑब्वियसली डिस्टर्बेंस तो होता ही है। तो आई थिंक उन्होंने सिर्फ अपनी पर्सनल ओपिनियन व्यक्त की है और इस पे हमें इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं करनी चाहिए।